श्री राजीव प्रताप रूडी जी। बार बार आया कीजिए सर यहाँ पर। महोदय, जब हमारा जन्म होता है और जब जन्म से लेकर के अंतिम सांस तक एक ही चीज हमारे शरीर में है जो बिना किसी कंडीशंस का हमेशा हमें वो चलता रहता है, वो हमारा हार्ट है सर। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको स्वच्छ ऑक्सीजन चाहिए, चाहे हम रोते रहे, चाहे हम जगे रहे, चाहे हम गुस्से में हो, सोए रहे, वो हमेशा अपना काम करता है और उसको ईश्वर ने स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन मेरा यही है कि एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का अंश वही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो बिना किसी पूछताछ के लिए वो अपनी सेवा करता रहता है। उसे स्वच्छ सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो कुछ नहीं मांगता है, और ये संघर्ष उसी ऑक्सीजन का है। अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है माननीय मंत्री जी ने, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने बहुत। मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा शहर है जो जयप्रकाश जी का गांव था, बिहार में छपरा है। हमारे पास जो प्रतिवेदन है 3 लाख के शहरों तक में वो सबसे पॉल्यूटेड शहर है। तो क्या वो ऐसे शहर जो सूची बनाने का जो आपने सूची बनाया है उसमें कई ऐसे शहर है और ये पूरे देश के लिए लागू होता है, तो क्या आप छपरा को भी इसमें शामिल करके विशेष रूप से पॉल्यूशन फ्री कराने के लिए कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? और वैसे शहर जो छूट गए हैं फिर से पूरा सर्वेक्षण करा के क्या आप उसे सम्मिलित करना चाहेंगे और योजनाओं से लाभान्वित करना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है, ये पूरे देश के लिए। महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं सांस है तो आस है, और इसलिए वो अपने शहर के बारे में कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये जो फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है ये 2025 तक के लिए है, और बाकी के लिए अभी नए स्टैंडर्ड के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वो IIT रुड़की के द्वारा और दिल्ली के द्वारा उसका एक अध्ययन चल रहा है, विचाराधीन। क्वेश्चन नंबर 83। नॉट प्रेजेंट, कॉल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to ask a supplementary question. Sir, I would like to know from the Honorable Minister of Education through you, sir, so what is the current government doing to counter the rising cases of student suicide in Kota amidst the current scenario of anxiety faced by the students due to the ongoing NEET scam saga? As the deserving students who put in effort and families' resources lost seats and will be in a mental stress of such reoccurrences. Thank you, sir. Sir, Chairman, sir. माननीय मंत्री जी। I would like to inform the honourable member through you that several initiatives has been taken by our government regarding this kind of incidents to curb the incidents of suicide among the students. As honourable member asked for the suicides happening, those are in Kota. According to according to the NCRB and the Accidental Death and Suicide India, only 1.2% of the total suicide cases is related to the failure of examination. So then I would like to come to the initiative. Our department taken several initiatives. Among them, I would like to mention some such as Manodarpan. Manodarpan covers a wide range of activities that provide psychological support to the students, teachers, and families. So, even in case of Kota, as asked by the Honorable... Kindly you address to Chair. Chairman, sir. Saugat Rai ji, your member has already raised a question, supplementary question. Please, kindly you have patience. Please. Sir, the information we received from the Rajasthan government, had issued a guideline for the coaching institute first time in the year of 2022. Second guideline was issued in the year 2023, and the guidelines are enforced by the district administration of Kota. This guideline issued by the Rajasthan government and implemented by the
administration of quota, these work on the issue betterment of the mental health and stress reduction. माननीय मंत्री जी, जैसे केंद्र सरकार द्वारा आपने कहा कि हमारी सरकार द्वारा उपाय उठाए गए हैं, ऐसे ये कॉन्क्रीट लिस्ट में है, ये Yes, sir. विषय कॉन्क्रीट लिस्ट में है। तो राज्य सरकार द्वारा भी क्या उपाय है? Obviously, this matter is under the concurrence lead, as you know. पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।